Hello, children. Good morning. It's 10 o'clock. 10 o'clock, pe what we do? This is the time of science period. You are right. This time, today, we are going to start a new lesson. Children, on which planet we live? Of course, Earth. We live on Earth. Earth is the only planet where there is life. Children, the place where we live, we should keep it clean or not? हमको उसको साफ सुथरा रखना चाहिए ना? Yes, this is the lesson. Keeping the earth clean. And what is environment and how we make dirty our environment, like that many different topics we will read in this lesson, and how we can keep our surrounding clean, what activity we should do, what activities we should not do. We should immediately stop that. These all things we will read in this lesson. I'm going to share the book pages. It is in your book on page number 123. You all open the book, page number 123, and the name of the lesson is Keeping the Clean. What is beta? Keeping the earth clean. हम लोग अर्थ पे जहाँ रहते हैं उसको कैसे क्लीन करेंगे और क्या क्या पढ़ेंगे इस लेसन में? इम्पोर्टेंस ऑफ द एनवायरमेंट. एनवायरमेंट होता क्या है? कॉजेज ऑफ एयर, वाटर, लैंड, नॉइस पोल्यूशन. पोल्यूशन क्या होता है? what are the different effects of pollution and what are the different methods of preventing उन pollution को हम कैसे रोक सकते हैं? reduce, reuse, recycle. These all will read one by one. हम लोग ये सब कुछ one by one read करेंगे. Okay children? Children, you all are ready with your pencils and eraser? Yes. What we have to do? We have to, your friend are trying to keep their surrounding clean. Surrounding मतलब हमारे चारों ओर का एरिया, उसको क्लीन करना चाहता है. Take the suggestions you will give them. आप इतनी सारी एक्टिविटीज है, उसमें क्या आप करने को कहोगे और क्या नहीं करने को कहोगे अपने सराउंडिंग को क्लीन करने के लिए? Plant trees. Yes, ट्री को प्लांट करने को कहोगे ना? दिस इज द राइट. यू विल टेक केयर. एंड कम टू नंबर 2. पाइल अप गार्बेज अराउंड योर हाउस. अपने घर के चारों ओर इस तरीके से गार्बेज, कूड़ा इकट्ठा करोगे क्या? नो. देन यू विल क्रॉस दिस. क्लीन योर सराउंडिंग. और आप अपने चारों ओर को क्लीन रखोगे. यस. टेक केयर ऑफ प्लांट्स. प्लांट्स को हमेशा उसको सही समय पे पानी दोगे. Yes, you will take care. You will put here tick. Put garbage in the dustbin. और डस्टबिन में गार्बेज को डालोगे ना, ऐसे खुला फेंकोगे नहीं. Yes, it is true. So these 4 activities are right, which you will suggest your friend to do, and you will ask your friend not to do this. ऐसा नहीं करना चाहिए this type of work. ना, pile up ऐसे कूड़े का ढेर नहीं लगाना चाहिए. Where we should throw the garbage? In a closed dustbin. In your book, it is on page number 23. You all take. Children, all living things and non-living things, we are surrounded by living and non-living things. दोनों तरीके की चीजों से घिरे हुए हैं ना? And they make our environment. Environment किससे मिलके बनता है? Living and non-living. वो सारी चीजें जो हमारे चारों ओर हैं. Our environment also includes the वेदर ऑफ द प्लेस वी लिव इन. जिस जगह पे हम रहते हैं उस जगह का क्या वेदर है. एंड द ऑल लिविंग थिंग्स एंड ऑल नॉन लिविंग थिंग्स, दे टुगेदर फॉर्म द एनवायरमेंट. वो उस जगह का क्या बनाते हैं? एनवायरमेंट बनाते हैं. क्या क्या एनवायरमेंट बताता है? द ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स अराउंड यू and the weather of particular place make the environment of that place. Okay, let's read another thing. Children, what is the importance of environment? Our environment gives us everything we need. जिन जिन चीजों की जरूरत होती है वो हमको कहाँ से मिलता है? अपने एनवायरमेंट से मिलता है. The food we eat comes from the plants and animals. हमारे चारों ओर जो प्लांट्स और एनिमल्स जो फूड से डिफरेंट फूड मटेरियल हम लेते हैं. एयर वी ब्रीथ, हम एयर हम सांस लेते हैं. द वाटर वी ड्रिंक, द मटेरियल वी यूज टू मेक आवर हाउसेज. अपना घर बनाने के लिए हमको थिंग्स की जरूरत पड़ती है ना?
and the clothes we wear all comes from our environment. ये सारी चीजें हमको कहाँ से मिलती हैं? हमको अपने environment से ही तो मिलती है. कहते हैं रोटी कपड़ा मकान. तो ये these all three needs from where we get from our surroundings. हमें अपने environment से ही मिलती है. This is the importance of the environment. Children, we are the human being. हम क्या करते हैं? अपने फायदे के लिए अपने environment को डैमेज करते हैं, उसको नुकसान पहुंचाते हैं. How have we damaged our environment? जरा देखें तो हम कैसे नुकसान पहुंचाते हैं. We human being have done our best to make our life comfortable. अपने लाइफ को कंफर्टेबल, सुविधाजनक, आरामदायक बनाने के लिए हम कुछ चीजें करते हैं. By doing so, we are making many changes in the environment. और अपनी लाइफ को कंफर्टेबल बनाने के लिए अपने आसपास के एनवायरनमेंट में हम बहुत सारे चेंज कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, as the number of people increasing day by day, जैसे कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, लोगों का नंबर डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, we are making more and more houses, roads and factories. चलने के लिए लोगों को ज्यादा रोड बन रही है, लोगों को जरूरत पूरा करने के लिए we are developing many factories. We get more land for these. और घर बनाने के लिए हमें और जगह की जरूरत है. We are cutting down forest. हम फॉरेस्ट को काट रहे हैं, तभी तो हम प्लेन लैंड पे घर बना रहे हैं. हमको घर में रहने के लिए फर्नीचर की जरूरत है, वो हम लोग वुड लेते हैं. वी आर ऑल्सो कटिंग डाउन ट्रीज टू मेक डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बिल्डिंग्स, फर्नीचर्स एंड पेपर्स. ये सब करके हम क्या कर रहे हैं बेटा? अपने एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं ना, हम लोग डैमेज कर रहे हैं. Children, when we cut down forest, many animals lost the place they live in. एक पेड़ पे आप सोचो बेटा, आप यदि कहीं पेड़ का आप रहने के लिए, जैसे पॉपुलेशन डे बाय डे बढ़ा तो हमने खूब सारे हाउसेस बना दिए. हाउ मेनी हाउसेस वी हैव मेड? उसके लिए हमें उतने ज्यादा लैंड की जरूरत पड़ेगी, तो हमने पेड़ को कट कर दिया. हाँ, पेड़ को कट करने से क्या नुकसान हुआ? उसमें जितने एनिमल्स का, वो बहुत सारे बर्ड्स एंड एनिमल्स का होम होता है ना, ट्री, उनका घर छूट गया. और प्लांट्स हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करते थे. दे गिव अस कार्बन डाइऑक्साइड, और जो एटमॉस्फेयर की कार्बन, दे गिव अस ऑक्सीजन, वो हमको ऑक्सीजन देते थे, और एटमॉस्फेयर की कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके अपना फूड बनाते थे. तो हमें ऑक्सीजन की भी कमी हो गई ना. और क्या इसका दिक्कत है? फॉरेस्ट कीप्स द अर्थ कूल. और क्या होता है? एक तो एनिमल्स अपना घर लूज कर देते हैं, एज ए रिजल्ट मेनी ऑफ देम डाई, और बहुत सारे एनिमल्स मर भी जाते हैं. फॉरेस्ट कीप द अर्थ कूल एंड ऑल्सो ब्रिंग रेन. और जंगल की वजह से ही आपने देखा था ना, रेन आती है और धरती कूल रहती है, डायरेक्ट सन की हीट नहीं आ पाती है, वो प्लांट की ले लेते हैं थोड़ा. सो कटिंग देम डाउन कॉजेस चेंज इन वेदर. उसकी वजह से वेदर चेंज भी हो जाता है. रूट्स ऑफ द ट्रीज होल्ड द सॉइल टुगेदर. और जो हमारा अर्थ का सबसे ऊपरी सरफेस क्रस्ट है ना, जिसपे हम रहते हैं, और उसके ऊपर क्या पाया जाता है? सॉइल पाया जाता है ना. सॉइल इज प्रेजेंट ऑन द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ, जिसपे कि वी ग्रोस प्लांट एंड ट्रीज. और जो प्लांट एंड ट्रीज के होते हैं, वो क्या करते हैं? उनके रूट्स जो है वो सॉइल को पकड़े रहते हैं. सो कटिंग डाउन फॉरेस्ट ऑल्सो लीड टू सॉइल इरोजन. और जब हम पेड़ काट देते हैं तो उसकी वजह से और क्या होता है? सॉइल एरोजन भी हो जाता है ना. Children, addition of harmful substances to the environment is called pollution. और जो harmful substances, चीजें हम environment में डालते हैं, उसको क्या कहते हैं? pollution कहते हैं. The harmful substances that cause pollution are called pollutant. अब ये प्रोसेस तो पॉल्यूशन कहलाता है, लेकिन जो चीजें, जो हमारे सब्सटेंस होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? पॉल्यूटेंट कहलाते हैं, पॉल्यूटेंट्स. स्मोक फैक्ट्री से निकला, तो स्मोक क्या है? ये एक पॉल्यूटेंट है ना. इट इज एन एग्जांपल ऑफ द पॉल्यूटेंट. इस तरीके से बहुत सारे पॉल्यूटेंट होते हैं, जो कि जैसे घर में हम टीवी फ्रिज यूज करते हैं, उसके पीछे से गैस निकलती है. एसी यूज करते हैं, क्लोरोफ्लोरो गैस निकलती है, वो भी बहुत डेंजरस होती है. And what is air pollution? Pollution कई तरीके के होते हैं. What is air pollution? Car, buses, trucks and another vehicles give out harmful gases into the air. आप सब देखते हो ना, ये सब जब व्हीकल्स रोड पे चलते हैं तो वो क्या निकालते हैं? They give out
harmful gases into the air. This happens when the petrol and diesels they run on bones. और ये कैसे निकलता है? जो हाउ द व्हीकल्स रन कैसे करते हैं? उनमें पेट्रोल एंड डीजल डालते हैं. When petrols and diesel runs, वो तो जलते हैं तभी तो बर्न होते हैं, और बर्न होने पे क्या निकलता है? दे क्रिएट दिस टाइप, वो इस तरीके से हार्मफुल गैसेस निकालते हैं. फैक्ट्रीज एंड ब्रस्टिंग क्रैकर्स ऑल्सो गिव आउट हार्मफुल स्मोक. और जो आप फैक्ट्रीज में जो सामान बनता है वहां पे भी देखते हो बहुत सारी गैस वो निकलती रहती हैं चीजें. आपने देखा है ना? चिल्ड्रन, इस तरीके से जो एयर का पोल्यूशन होता है, फैक्ट्रीज और क्रैकर्स जलाने से जो गैसेस निकलती है वो सब क्या करती है? हार्मफुल गैसेस मेक द एयर पॉल्यूटेंट. एयर को क्या बना देती है? इसमें पोल्यूशन कर देती है. एंड व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन? एयर पोल्यूशन का क्या इफेक्ट है? स्मोक एंड हार्मफुल गैसेस कैन कॉज अस्थमा एंड लंग कैंसर. नाउअडेज आप बेटा बहुत लोगों को देख रहे हो ना कि आप में उनको जो है सांस की बीमारी हो जाती है. तो वो किसकी वजह से होती है? एयर में जो ये डस्ट के पार्टिकल्स, हार्मफुल गैसेस होते हैं, फैक्ट्रीज से निकले हुए स्मोक होते हैं, कार्बन के पार्टिकल्स होते हैं, वो जो एयर ब्रीथ करते हैं तो वो हमारे लंग्स में जाकर के इकट्ठा हो जाते हैं एंड दे ब्लॉक द, और वो ब्लॉकेज कर देते हैं. और हम इस तरीके से हमारे बहुत सारे हार्ट डिजीज भी हो जाती है, लंग्स की भी डिजीज हो जाती है, और अल्टीमेटली कुछ लोगों को तो कैंसर तक ये क्रिएट कर देते हैं. सो इट इज़ वेरी वेरी हार्मफुल. इसलिए एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है. एयर पोल्यूशन कैन कॉज ब्लड एंड हार्ट डिसीजेस. इट कैन ऑल्सो कॉज हेडेक एंड स्किन एंड आई इरिटेशन. कई लोगों को देखियो कि आपके उनके स्किन पे छोटे छोटे दाने से निकल आते हैं, वो खुजली होती है, आंखों में भी इरिटेशन होता है. जब आप बाहर जाते हो कहीं पे आपको पेट्रोल जलता हुआ सा आता है तो आपकी आईज जो है बहुत सेंसिटिव ऑर्गन है ना. आईज जो है हमारे बॉडी की मोस्ट सेंसिटिव ऑर्गन है. तो वो थोड़ा सा भी एयर यदि कुछ भी जलता हुआ सा रहता है तो हमारी आंखों में तुरंत जलन होता है. आपने कई जगह न्यूज में पढ़ा भी होगा कि जो हार्मफुल गैसेस फैक्ट्रीज से निकली थी उसकी वजह से कितने लोगों की डेथ भी हो गई थी ना. सो वी शुड बी वेरी वेरी केयरफुल. हमको बहुत केयरफुल होना चाहिए. दिस इज द पिक्चर ऑफ एयर पोल्यूशन. आपके बुक में ये वाली पिक्चर है ना. एयर पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय स्मोक फ्रॉम द फैक्ट्रीज एंड द व्हीकल्स. इन दिस पिक्चर देख रहे हो, ये फैक्ट्री में से ये देखो कितना सारा धुआं निकल रहा है. फैक्ट्रीज में बहुत बड़ी बड़ी मशीनें चलती हैं, वो पेट्रोल डीजल से चलती हैं, और फिर बदले में वो क्या निकालती हैं? इस तरीके की हार्मफुल गैसेस निकालती हैं. और इसमें क्या होता है? कार्बन के पार्टिकल्स होते हैं, सल्फर होता है, जो कि वो हमारे लिए, लेड के पार्टिकल्स, ये सब चीज़ें क्या होती है? बहुत हार्मफुल होती है. और जो ये व्हीकल्स चलते हैं वो भी देखो इधर पीछे से ये क्या निकालते हैं? हार्मफुल एयर्स निकालते हैं ना, that are very very harmful for us. And during winters में क्या होता है? Smoke present in the air gets, ये क्या करता है? ये मिक्स हो जाता है फॉग के साथ. और स्मोक इज ऑल्सो काइंड ऑफ एयर पोल्यूशन, और स्मोक बना देता है. ये स्मोक क्या बनाता है? स्मॉग बना देता है और कोहरा बना देता है. स्मॉग और ये एयर, ये भी एक तरीके का एयर पोल्यूशन है. इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ एयर पोल्यूशन. ओके चरण, एज जैसे एयर पोल्यूशन होता है वैसे वाटर में भी पोल्यूशन होता है. डर्टी वाटर्स फ्रॉम द होम्स एंड फैक्ट्रीज गोज इनटू ड्रेन्स. जो हमारे यहाँ पाइपें लगी होती है ना, नालियां होती हैं, उनमें जाता है. दिस वाटर कंटेन सोप, जो हम नहाते हैं, कपड़े धोते हैं, डिटर्जेंट निकलते हैं, केमिकल्स निकलते हैं. दीज ड्रेन्स रिलीज दिस डर्टी वाटर इनटू वेरियस वेस्ट वाटर बॉडीज सच एज रिवर्स, लेक एंड सीज में जाकर के ये ड्रेन्स खुलते हैं एंड पॉल्यूट देम. पहले आपने देखा था कुछ दिन पहले गंगा जी में भी, अब आप देखते हो तो खुला नाला बहता था. दे causes the water pollution. Farmers use chemicals, fertilizers and pesticides for their crops. और किसान लोग क्या होते हैं, करते हैं कि अपनी क्रॉप्स को, अपनी फसल को बचाने के लिए उसमें डिफरेंट डिफरेंट केमिकल्स का, दवाइयों का छिड़काव करते हैं. हाँ, व्हेन इट रेन्स, और जब बारिश होती है तो वो जो उनके पत्तियों पे जो इकट्ठा रहते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ दीज फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स फ्लोज इनटू नियर बाय, और वो क्या होता है? नीचे की जगह में, प्लेसेस में चला जाता है और वाटर को पोल्यूट कर देता है. और व्हाट इट कॉजेस? इट कॉजेस द वाटर टू पोल्यूट. और ये वाटर को पोल्यूशन और कर एंड फ्लोज इनटू नियर बाय वाटर बॉडीज एंड पोल्यूट द एयर. और
एंड पोल्यूट द सॉरी वाटर, और वहाँ के वाटर को पोल्यूशन कर देता है. दिस इज द what, and now we will read the what is the effect of water pollution. Effect of water pollution क्या होता है? Many harmful germs grows in the polluted water. बहुत सारे बैक्टीरिया फंजाई ये जो है polluted water में ग्रो हो जाते हैं, और इट कॉजेज डिजीज, टाइफाइड, डायरिया, डिसेंट्री. बारिश के दिनों में ये सब चीजें बहुत ज्यादा होती है ना. ये जब वाटर में जाके इकट्ठा होते हैं तो जम्स पैदा करते हैं, और ये जम्स क्या करते हैं? वाटर को पोल्यूट कर देते हैं. And the harmful chemicals in the polluted water are taken in by the plants and water animals. उनके थ्रू उसमें जाता है. When we eat these animals और plants को जब हम खाते हैं, the chemicals enter into our body and make us sick. और हम बीमार पड़ जाते हैं. आजकल देखते हो एनिमल्स को कितना सारा ये लोग दे देते हैं, डिफरेंट तरीके के दवाइयाँ दे देते हैं, ऑक्सीडोन इंजेक्शंस डाल देते हैं. फिर उस मिल्क को जब हम पीते हैं तो हम बीमार पड़ जाते हैं उसकी पैदावार बढ़ाने के लिए. नाउअडेज क्या करते हैं बेटा, फार्मर्स क्या करते हैं कि किसी भी चीज का वो खूब ज्यादा नंबर में वो चीज ग्रो करे, वो उसको इंजेक्शन ऑक्सीडोन का दे देते हैं, कम ज्यादा बड़ा हो जाता है, और काउस को लगा देते हैं, वो ज्यादा मिल्क देने लगती हैं. बट जब हम उस मिल्क को पीते हैं या उससे प्रोड्यूस किए हुए फ्रूट्स या वेजिटेबल्स को हम खाते हैं तो वो केमिकल्स हमारे अंदर भी तो चला आता है. और अब हमें नुकसान भी करता है, and it causes many diseases. और इस तरीके से जो फैक्ट्रीज से और ड्रेन से जो पानी में जाकर के गिरता है वो वाटर को पोल्यूट करता है ना बेटा. सो वी शुड अवॉइड, हमको इफ वी ड्रिंक पोल्यूटेड वाटर वी मे फॉल सिक. और इस तरीके का यदि हम पानी पिएंगे जिसमें कि जो पोल्यूटेड होगा तो हम क्या करेंगे, हम बीमार ही तो पड़ेंगे. ओके. अब व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन हमने पढ़ ही लिया. नेक्स्ट, दिस इज द पिक्चर ऑफ वाटर पोल्यूशन. आप देखते हो वाटर के ऊपर इस तरीके से कूड़ा कचरा जो ये फ्लोट कर रहा है, आपके बुक में ये पिक्चर है ना. दिस इज द पिक्चर ऑफ वाटर पोल्यूशन. वी मस्ट अवॉइड, हमको जो है वो अवॉइड करना चाहिए. वी शुड उनको गंदगी को किसी दूसरी जगह डंप करना चाहिए, वाटर में नहीं करना चाहिए. And there is another type of pollution that is called land pollution. When people throw waste from homes and factories on land, it causes land pollution. जो हम लोग अपने घर के बाहर कूड़ा करकट फेंकते हैं, फैक्ट्री से जो जमीन पे वो क्या क्रिएट करते हैं, लैंड पोल्यूशन करते हैं. Too much use of pesticides and फर्टिलाइजर्स ऑल्सो पोल्यूट द लैंड. और जो खेतों में जब बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड और पोल्यूटेंट द फर्टिलाइजर्स हम डाल देंगे तो वहां का लैंड भी पोल्यूट हो जाएगा. एंड सॉइल हैज टाइनी लिविंग थिंग्स कॉल्ड बैक्टीरिया, दे कैन हेल्प समटाइम. और वो जो बैक्टीरियाज होते हैं वो क्या करते हैं, वेस्ट टू रॉट एंड मिक्स विद द सॉइल, और सॉइल के साथ मिक्स हो जाते हैं. दिस टाइप ऑफ वेस्ट इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. जब वेस्ट, ऐसे वेस्ट जो कि वो प्लांट और उसके जो मिक्स हो जाते हैं उनको बायोडिग्रेडेबल कहते हैं. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल पील्स, फल और सब्जियों के छिलके, लीव्स, थिंग्स मेड और पेपर और वुड आर द एग्जांपल्स ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. जो वेस्ट जो है वो रॉट हो जाते हैं, सड़ के उनके बैक्टीरियाज उनको खा जाते हैं और वो डिसअपियर हो जाते हैं, उनको बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं. ये ज्यादा हार्मफुल नहीं होते हैं क्योंकि एक टाइम पे आने पे क्या होगा, ये खत्म हो जाएंगे. जो बैक्टीरिया है वो उनके रॉट होके इनके साथ मिक्स होते हैं और उसको खत्म कर देते हैं, और इनको बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं. व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल पील्स, लीव्स, पत्तियां, पेपर भी तो पत्तों से बनता है, पेड़ से बनता है, वुड, ये सब जो है कहलाते हैं. एंड सम जो है कुछ वेस्ट ऐसे होते हैं दे कैन नॉट रॉट, जो कि नहीं खत्म हो पाते हो सकते हैं, सड़ नहीं जाते हैं. दे आर कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल. ये सबसे खतरनाक नुकसानदायक वेस्ट होते हैं. दीज वेस्ट डज नॉट मिक्स विद द सॉइल. जैसे ये वाले मिक्स होकर के किस में मिक्स हो गए, सॉइल में हो गए, ऊपर से सॉइल को यूजफुल खाद भी बना देते हैं. बट जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं वो वाटर इस सॉइल में मिक्स नहीं होते हैं. दे आर हार्म, वे मिट्टी को और नुकसान पहुंचाते हैं. और वो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होते हैं? प्लास्टिक. ये बैक्टीरिया प्लास्टिक को नहीं खा सकता, गला सकता है.
रबर भी नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ग्लास, मेटल्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. सो हम इसलिए हमको बहुत ध्यान रखना चाहिए कि इनकी हमको रिसाइकलिंग करनी चाहिए, इनको हमको लैंड पे नहीं फेंकना चाहिए. इसलिए बोलते हैं प्लास्टिक कम यूज करो, वुड यूज करो, क्योंकि प्लास्टिक धरती से खत्म नहीं होता है वो, क्योंकि रॉट नहीं होता है, सॉइल में मिक्स नहीं होता है. ये देखो पॉलिथीन, इसीलिए बेटा पॉलिथीन्स की बैग देखो, ये लैंड पोल्यूशन का पिक्चर है ना, एकदम वी शुड नॉट यूज, क्योंकि ये धरती पे गलेंगे नहीं, मिक्स नहीं होंगे तो और ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे और लैंड को खराब कर देंगे. Insects and animals gather around the pile of dirt or land and spread germs and disease. और जो वो कीड़े मकोड़े होते हैं वो वहां पे ग्रो कर जाते हैं जहाँ पे हमने लैंड पोल्यूशन कर रखा है, और वो बहुत सारे जर्म्स और डिजीज पैदा करते हैं. केमिकल्स एंड जो फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स जो हार्मफुल है, वो लिविंग, वो सब मिट्टी में रह जाते हैं, और जब वो बैक्टीरिया मरते हैं तो क्या होता है, जो सॉइल की क्वालिटी होती है वो और खराब हो जाती है, वो नुकसानदायक हो जाती है. Children, let's do this book exercises. You all are with pencils, children. Be ready with pencils. And we will do this book exercises. This is in your book on page number, आपके बुक में पेज नंबर 126 पे है. Here it is in your book in page number 126. Let's do. चलो ट्रू और फॉल्स हम लोग करते हैं. यू ऑल आर रेडी? आप सब तैयार हो? चलो लेट्स डू, हम लोग करते हैं. अब इसमें हम फाइंड आउट करेंगे कि ये ट्रू है कि फॉल्स है. व्हाट वी विल फाइंड आउट, वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स. ठीक है. All living and non-living things found in our surrounding makes up our environment. It is true. ये true है ना बेटा? जो सारी चीजें हम एनवायरमेंट पे, ऑल नॉन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग जो हमारे चारों ओर रहती है, वो हमारा एनवायरमेंट पे बनाती है. दिस इज ट्रू. व्हाट यू विल राइट हियर? हियर यू विल राइट ट्रू. टी फॉर ट्रू. कम टू द सेकंड वन. Addition of harmful substances to the environment is called pollution. Yes, this is also true. उसको pollution ही तो कहते हैं. हार्मफुल सब्सटेंसेस को जब हम अपने एनवायरमेंट पे ऐड करते हैं तो वो क्या कहलाता है? पोल्यूशन कहलाता है. ब्रीदिंग पॉल्यूटेड एयर कैन मेक अस हेल्दी. क्या हमको पॉल्यूटेड एयर यदि हम सांस में ब्रीद करेंगे तो हम हेल्दी होंगे? नो, दिस इज द फॉल्स. ये गलत है. हम जो है हमको अनहेल्दी बनाएंगे. ब्रीदिंग पॉल्यूटेड एयर कैन मेक अस अनहेल्दी. कम टू द नेक्स्ट. वेस्ट दैट कैन रॉट विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. ऐसे वेस्ट जो कि बैक्टीरिया की मदद से रॉट हो जाते हैं उनको नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं. नो, दिस इज फॉल्स. उनको क्या कहते हैं? बायोडिग्रेडेबल कहते हैं ना. बायोडिग्रेडेबल क्या होते हैं? वेस्ट खत्म हो जाते हैं, और लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं. Come to the 5. Insects and animals gather around the piles of dirt on land and spread germs and diseases. जो हम लैंड पोल्यूशन में कूड़ा करकट चारों ओर डालते हैं उसके और बैक्टीरिया और जर्म ग्रो करते हैं, और वो क्या करते हैं? जर्म्स और डिजीज क्रिएट करते हैं ना. यस, इट इज ट्रू. ओके, आप सब लोग इसको कर लोगे? यस, लेट्स डू. देखो ट्रू फॉल्स ये मैंने फुल स्क्रीन में करके आपको दिखा दिया. Addition of harmful substances to the environment is called pollution. True. Breathing pollutant air can make us healthy. False. Waste that can rot with the help of bacteria is called non-biodegradable. ये गलत है कि ये क्या कहलाते हैं? Biodegradable. Insects and animals gathered around piles of dirt on land and spread germs and diseases. This is true. Okay, children? You all will do this. Okay, what we have done today, we have learned about the air pollution. Environment क्या होता है? The things, all living and non-living things, and the weather of that area, they together form the environment बनाते हैं.
एंड व्हाट इज पोल्यूशन? कोई भी हार्मफुल सब्सटेंसेस जब हम एटमॉस्फेयर में डालते हैं तो वो पोल्यूशन कहलाता है, और जो चीज जो थिंग होता है उसको पॉल्यूटेंट कहते हैं। एंड पोल्यूशन इज ऑफ मेनी टाइम। जब एयर में पोल्यूशन हुआ तो हम उसको एयर पोल्यूशन कहें, कोई हार्मफुल थिंग्स एयर में गई तो एयर पोल्यूशन बनता है। एंड जब वाटर में गई तो वाटर पोल्यूशन बनता है। और लैंड पे जो हम गार्बेज थ्रो करते हैं, दिस कॉजेज द, क्या क्रिएट करता है? लैंड पोल्यूशन। देयर आर अदर फॉर्म्स ऑफ पोल्यूशन टू, और भी तरीके से हम पोल्यूशन करते हैं। इन नेक्स्ट क्लास वी विल रीड द डिफरेंट अनदर टाइप ऑफ पोल्यूशन एंड हाउ वी शुड प्रिवेंट दैट, और उनसे हमको कैसे बचना चाहिए, ये सब भी हम लोग पढ़ेंगे इन आवर नेक्स्ट क्लास। Okay, children, read this lesson again and again and collect the picture from the newspapers, magazines, the picture of air pollution and water pollution. Okay, children, bye bye.